તાજેતરમાં ઉના મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ધોરણ 10, 11 અને 12ની પરીક્ષામાં 70%થી વધુ માર્ક્સ મેળવનારા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓનો સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં ધોરણ 10 અને 12માં 90%થી વધુ માર્ક્સ લાવનાર વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ રૂપે રોકડ રકમ, શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। ચાલો જોઈએ ઉનાથી ફારૂક કાઝીનો રિપોર્ટ। શિક્ષણ એ જ સફળતાની ચાવી છે। અત્યારે જે છોકરા ભણે છે એની ભણ્યું, જે પેરેન્ટ્સ ભણી બેઠા છે એ લોકોએ જે તે સમયે ભણી લે, પણ આ ચાવી ભણતા 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 ક્યાં ખોવાઈ જાય છે એ ખબર નથી પડતી। મુસ્લિમ સમાજમાં સારા એજ્યુકેટ લોકો ઓછા નથી, એજ્યુકેટેડ લોકો ઘણા છે, પણ સાથે સાથે એક વાસ્તવિકતા એ પણ છે। તમે સર્ચ કરજો, ગૂગલનો જમાનો છે। હમણાં જ એક રિસર્ચ આવેલું છે કે ઇન્ડિયામાં મુસ્લિમ પોપ્યુલેશન કેટલી છે, તો એ પોપ્યુલેશન પ્રમાણે યુનિવર્સિટીઝ અને કોલેજમાં મુસ્લિમ સ્ટુડન્ટ કેટલા છે। આ એક બહુ મહત્વની વસ્તુ છે, આ વિચારવા જેવી બાબત છે। બહુ એટલે બહુ નાની એવી સંખ્યા છે। હમણાં સાહેબ આવ્યા હતા, એમણે બહુ સારી વાત કરી, એના અનુભવ છે કે જ્યારે આપણા બાળકો યુનિવર્સિટી કે કોલેજમાં ભણવા જાય, 100 બાળકો વચ્ચે 2, 3, 5, 7 મુસ્લિમ છોકરાઓ હોય છે। ધીરે ધીરે આ બધી વસ્તુ સુધરવામાં છે। જેટલા લોકો અહીંયા હાજર છે એ લોકોને ઓલરેડી સમજાઈ ગયું છે કે એજ્યુકેશનની શું વેલ્યુ છે। એ લોકો અત્યારે અહીંયા બેઠા છે, પણ આપણી સાથે સાથે એ પણ ફરજ છે કે જે આપણા મુસ્લિમ ભાઈઓને હજી આ નથી સમજાવ્યું, તો કોઈ પણ રીતે આ વસ્તુ એના માઇન્ડમાં ઉતારવી પડશે અને એજ્યુકેશન તરફ આગળ વધારવા પડશે। કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આગેવાનોએ શિક્ષણના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓને પ્રાથમિકથી ઉચ્ચતર માધ્યમિક સુધીના અભ્યાસને જીવનનો મહત્વનો ધ્યેય ગણાવીને સંઘર્ષ કરવા જણાવ્યું હતું। વધુમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવીને 3 ડોક્ટર, 1 એડવોકેટ તેમજ એમકોમ, બીએડ, પીસીસી જેવા ક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા। अपनी जो ड्यूटी है वो बजा रहा हूँ। तो इन शॉर्ट यानी कि सिर्फ समय को मद्देनजर रखते हुए 2 पंक्तियाँ हैं, जैसे कि एक उर्दू में है, एक इंग्लिश में है, वो दोनों में पूरा ही आ गया सब। इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। सक्सेसफुल एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। इल्म रोशनी और जहालत अंधेरा, इल्म के बिना हमारी लाइफ है वो अंधेरा है। यानी कि बच्चा जब से अगर इल्म हासिल करेगा और आगे बढ़ेगा तो उसकी लाइफ है उसमें रोशनी रहेगी। और दूसरी पंक्ति में सक्सेसफुल एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। सफल शिक्षण ए सफल जीवन नो पायो है, यानी कि सफल शिक्षा वो सफल जीवन का पहलू है। यानी कि हमारा जो मकसद है, हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स वो दोनों का कोऑर्डिनेशन और एक शिक्षक भी यहाँ पे मौजूद है, वो तीनों का कोऑर्डिनेशन अगर रहा तो आपकी लाइफ में आपका जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जैसे खाने में विदाउट सॉल्ट हमें खाना फीका लगता है, इसी तरह हमारी लाइफ में एजुकेशन के बिना हमारी लाइफ भी फीकी है। इसलिए मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ और पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे कि जो लाइफ के अंदर यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में एजुकेशन तो हम लेते हैं, डिग्री भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलती है, लेकिन क्या वो हमारी लाइफ में दिखता है या नहीं? क्या हमारे में वो मैनर्स है? क्या हमारे में वो नॉलेज है? क्या हमारे में वो डिसिप्लिन है? तो इस तरह से हमारा एजुकेशन अगर हम कैच करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो लाइफ टाइम वह एजुकेशन है वो हमारे बहुत ही काम आएगा। મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત આગેવાનો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને ઉત્કૃષ્ટ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। જીવનમાં માત્ર પૈસા જ નહીં પરંતુ શિક્ષણ મેળવીને એકબીજાને જ્ઞાનની આપ-લે કરવા અને દીકરીઓને દીન સાથે દુનિયાનું શિક્ષણ આપવા માટે વાલીઓને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો હતો।
ઇસ્લામ ધર્મ શિક્ષણ પર ભાર મૂકે છે તેનું અનુકરણ કરી પોતાની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ સુધારવા તેમજ દેશના વિકાસમાં યોગદાન આપવા માટે સૌને આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા. દીકરીઓને શિક્ષણની સાથે વ્યક્તિત્વ વિકાસ પર પણ ध्यान આપવા ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો. उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होंगे, हिडन टैलेंट्स होंगे, कभी कभी दिखा नहीं सकते होंगे, शर्माते होंगे किसी को बताने में. लेकिन मेरे हिसाब से मुझे खुद प्राउड होता है कि मेरे फादर भी इस टीम के मेंबर हैं. इन लोगों की वजह से आज यहाँ पे टैलेंट, मेरी क्या औकात थी कि मैं यहाँ आकर कुछ बोल के जाऊँ. मेरे में टैलेंट था, हिडन टैलेंट था. होता है सबको स्टेज फियर होता है, हर चीज़ का हर लोगों को कोई ना कोई फियर होता है. अभी कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेज पे आके बोलते बोलते मतलब हिचकिचा जाते हैं. लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया. मेरे को खुद को अभी इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर आकर खड़ी हूँ, बोल रही हूँ इतने लोगों के बीच में. ऊपर भी लोग बैठे हैं इन लोगों की वजह से. मुस्लिम समाज की लड़कियाँ लड़के आगे बढ़ेंगे इन लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया है, सबको दिखाया है कि टैलेंट है बच्चों में. कितने सारे लोग हैं जो MBBS तक पहुँचे, BHMS तक पहुँचे. इंशाअल्लाह कल को कोई IAS कलेक्टर तक पहुँचेगा, UPSC क्लियर करेगा. तो जनरली मेरा एम तो यही है, UPSC क्लियर करना. मेरे लिए एक मोटिवेशन थी क्या है, भावनगर का ना एक कलेक्टर है, रिसेंटली कलेक्टर है. 10th में 30% के साथ आज वो भावनगर में कलेक्टर है. माँ बाप का ना, कोई माँ बाप अपने बच्चों को कभी प्रेशराइज नहीं करता है किसी चीज़ के लिए कि तू पढ़ पढ़ पढ़. बट बच्चों के दिल में ख्वाहिश होती है कि बचपन में उनके माँ बाप के नाम से जाने जाते थे, एक दिन हुआ है माँ बाप उनके नाम से जाने जाए. और मेरे फादर जब भी हम बाप बेटी जब नॉलेज के बारे में, स्टडी के रिलेटेड कुछ बात करते हैं ना, एक ही बात बताते हैं मुझे और वो मुझे अभी तक याद है और इंशाल्लाह मैं हमेशा याद रखूंगी. डोंट चेस विद सक्सेस. सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो. काबिल होगे तो तुमको सक्सेस मिलेगी. अगर तुम में कोई काबिलियत ही नहीं है तुमको सक्सेस कहाँ से मिलेगी. सक्सेस मिल भी गई, देखो डॉक्टर होते हैं, MBBS होते हैं, MD होते हैं, MD करते हैं कोई फील्ड में, तो काबिल कब होता है जब उसमें इतनी काबिलियत होती है आगे जाने की. वरना कोई मतलब कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सपने टूट जाते हैं, MBBS की तैयारी करते हैं लेकिन फिर भी वो उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाते हैं. तब तुम सोचो MD नीट जैसी टफेस्ट एग्जाम, मतलब इंडिया की पूरी टफेस्ट एग्जाम नीट एंड UPSC है, उसमें अगर नाम ना आए तो माँ बाप का और बच्चों का हाल क्या होता होगा. कहने को तो इजी लगता है लेकिन इजी नहीं है भाई, बहुत हार्ड होता है वो. UPSC द टफेस्ट एग्जाम, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं नीट में और UPSC में. कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, कितने फेल होते हैं. प्रेशराइज लोगों के, सोसाइटी के प्रेशर से या रिलेटिव्स के, घर वालों के होता है. शर्म आती है ना आने में कि बोल रहा था नीट करूँगी, UPSC करूँगी, आज कर ही नहीं पाया. ये प्रेशराइज कभी दिल में नहीं रखना है. और मेरा तो जैसे मैंने उस बार स्पीच में बोला था, इस बार मैं यही बोलूँगी, 10 लड़कियों को स्पेशली पढ़ाओ. कुछ माँ बाप होते हैं जो बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ऑनेस्ट बात है, इसमें कोई इनकार की बात है ही नहीं. मतलब 16 साल की लड़की होती है, इंगेजमेंट करा देते हैं. फिर भी क्या, इंगेज करो, फिर भी पढ़ो, क्योंकि इस जनरेशन में मेरे हिसाब से लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है कि ये दुनिया क्या है. अब इस दुनिया में अगर आप किसी को पूछोगे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, 99% लोग बोलेंगे पैसा. 90% लोग पैसा ही बोलेंगे. पूछ लेना कहीं भी किसी को, दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पैसा का ही ना जवाब आए तो मेरे को बोलना, फिर सब पैसा बोलेंगे. लेकिन पैसा ज़रूरी है, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ पैसे के बिना हो ही नहीं. कभी कभी ना अपना इस्लाम भी यही कहता है कि इल्म होना चाहिए, चाहे वो दुनिया का हो या दीन का हो. इल्म हासिल करना सबसे, इंसान की दुनिया में आकर सबसे पहली जिम्मेदारी होती है इल्म हासिल करना. अगर वो दुनिया का इल्म नहीं ले सकता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, दिन का तो इल्म ले सकता है ना. जैसे सावरकुंडला में दादा बाबू का मदरसा है, आलिमा बनते हैं माशाल्लाह. अगर अपने कौम में कोई आलिम बनेगा, प्राउड होगा कि नहीं होगा. आज IPS है, IAS है, वो आकर बैठेगा और कोई आलिम है,
आईएएस से ज़्यादा आलिम के पीछे भीड़ होगी मुस्लिम की, देखना आईएएस क्यों ना है वो, लेकिन सबसे इज्जत है ना उसको आलिम को ही मिलेगी, क्योंकि वो आलिम है, उसके पास दिन दुनिया सबकी नॉलेज है। दूसरी बात, डिग्रीज लेते हैं, एमडी तक कब पहुंचता है इंसान? મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો દ્વારા આશરે 100 જેટલા વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ઉપરાંત ઉનાની ગુલિસ્તાન માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકોનું તેમજ 100% પરિણામ લાવવા બદલ શાળાનું પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું।